As today's workshop is on Vedic maths, I would like to draw your attention on the work entitled Vedic Mathematics or 16 Simple Mathematical Formulae from the Vedas, a seminal text on the subject. On 27th March 1965, the Vice Chancellor of the book Vedic Mathematics by Jagadguru Swami Bharati Krishna Tirtha, Shankaracharya of Govardhan Peeth, Srimati Manjula Devi, sole inheritor of Swamiji's right, had entered into an agreement with the Banaras Hindu University to publish it. The editor of the book, Dr. V.S. Agarwal, described it as a class, by itself not pragmatically conceived and worked out, as in the case of other scientific works, but the result of the intuitional visualization of fundamental mathematical truths and principles during the course of 80 years of highly concentrated mental endeavor on the part of the author, and therefore appropriately given the title of mental mathematics. The Vedic formulae expounded in the book since then have been used by students all over the world. Today, the course on Vedic maths is being offered to the students of Delhi University as a part of the value addition course. The initiative was made under the guidance of the chairman, Professor Niranjan Kumar. Though he requires no introduction, for the benefit of the participants, I will introduce him briefly. Professor Niranjan Kumar, apart from heading the Value Addition Courses Committee as chairman, is also Dean of Planning, Delhi University, and Senior Professor, Department of Hindi, Faculty of Arts. He has taught at various universities in India and abroad, namely the University of California, University of Michigan, and Arizona State University. Apart from University of Delhi, JNU, and Aligarh Muslim University, his academic accomplishments include 4 books and more than 240 articles. Sir, you have previously held posts in the capacity of member National Education Policy 2020 Cell and member Hindi Advisory Committee and Ministry of Textile, Government of India, among others. You have also been the founder president of Pragyana Mindika and founder convener of India Forum, Davis, USA. Donning many hats, you're also a regular columnist on the editorial pages of national dailies. I would now like to request Professor Prabhat Mittal, convener VAC committee, to felicitate Professor Niranjan. Kumar and Muni Jagrit Kumar. Muni Dr. Abhijit Kumar, the first Terapanthi Jain ascetic to earn a PhD in English with research on the doctrine of gods in Jainism, is a visionary scholar, bridging ancient wisdom with modern science. He has led key initiatives such as the International Conference on Relative Economics and the Science and Jain Philosophy Conference at IIT Mumbai. He is the author of Elevate, Experience the Real High, and Living Legend Muni Mahendra Kumar. He has translated the History of Terapanth, Volume 2, and the Bhagavad Sutra into English. Currently, he is pursuing the prestigious 7-year Srutra Dharana course, the most rigorous and revered scriptural study in the Terapanth tradition. Muni Jagrit Kumar is a scholar monk integrating ancient Jain philosophy with modern science. Known for his mastery in Avadhan, Shatavdhani, and Sahasravdhani, demonstrating exceptional skills in mental mathematics and memory. Holding a BA in Jain philosophy,
He has authored Digital Detox Decoded and AI, Atmic Internet, exploring parapsychology, consciousness, and the network of interconnected intelligence beyond artificial systems. Dr. Muni Abhijit Kumar and Muni Jagrit Kumar are versatile scholars and prolific writers. They are also polyglots with fluency in many global languages. They have traveled over 10,000 kilometers on foot, delivering messages of faith, interconnectedness, and mindfulness. May I now request Professor Niranjan Kumar to felicitate our chief guests? I'd like to call upon Professor Niranjan to say a few words. आज के कार्यक्रम के हमारे अति सम्मानित दो विशिष्ट अतिथि श्रीमान डॉक्टर अभिजीत कुमार जैन मुनि महाराज, श्रीमान है कि उसके बारे में थोड़ा सा शिवानी जी ने केवल झलक भर बताई। ये लोग पैदल चलते हैं और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 7,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं। पैदल ब्रसल्स जाने वाले हैं, 25 देशों की यात्रा करते हुए पैदल ही। तो और गणित के मानसिक गणित के बहुत बड़े अध्येता भी हैं। तो आप दोनों का स्वागत है मुनि महाराज, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारे वैक कन्वीनर प्रोफेसर प्रभात मित्तल जी, वर्कशॉप कमेटी के सदस्य डॉक्टर शिवानी झा, डॉक्टर अनन्या और उपस्थित शिक्षक वृंद जो दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद एक नई तरह के शिक्षा का आरंभ हुआ और दैट एजुकेशन इज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। For the holistic development of personality, Delhi University gave the honors to this value addition courses committee, and we designed n number of courses. We are currently running 38 courses, and they are very different, multidisciplinary and novel in the nature that they had this kind of courses were never taught in the higher education system of the country. We started from scratch, zero, and our committee, from the very inception, the member was Professor Prabhat Mittal. He knows that how much hard work and pain, labor we have undergone, and day and night we worked for that, and the result is before you. As there is an impression somewhere in some quarters, because of I don't know what the reasons, these courses are kind of diluting your core courses, core disciplines. But that is not exactly true. If you compare with the world standard, I was right now, a couple of minutes ago, I was talking with Muniji, what is the ranking of Delhi University in the world or India. I must share the top ranking university of the world, whether it is Harvard or Stanford or Oxford or Cambridge or MIT, you take any name. Even the university in this country called Bharat, this continent, Asia, China, Korea and Japan, as well as Singapore. The credit course which we teach in our universities at the undergrad level is much more than any top world-class university. Normally it is 140 in any top universities, while we are teaching currently 172. And also I must share the courses which are taught in Western universities. Many of the courses are called fundamental courses, which are compulsory for every student. Languages is compulsory for every student to pass their undergrad. This kind of value education courses are very, very important and compulsory for all the students. But in Delhi University, somehow a message is kind of getting spreaded कि अरे क्या हो रहा है, इससे तो हमारा कोर्स डायलूट हो रहा है, वैक क्या हो रहा है, वैक के माध्यम से हम छात्रों का नुकसान कर रहे हैं। छात्रों को कुछ हमारे टीचर ऐसा बताते हैं, जबकि आप सबको जानना चाहिए, हमें भी जान पता है, आप सबको पता है,
हम सारे लोग टीचर नहीं हैं। आपके भाई बहन, हम लोग तो टीचर हैं, मतलब आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी, आपके माता पिता, आपके और भी बेटे बेटियां, सबको टीचर नहीं बनना है। After your undergrad, you go into different fields, and once you are entering into your work life, rarely you remember the things which you have studied as core course in your undergrad education. Rarely you understand. You might have studied from, apart from, suppose you are from mathematics, or you are from physics, or you are from economics, you must have studied also some other subjects. How much you remember that? Any of your friends and family members, after studying your courses, subjects, how much they remember that? हमें कुछ याद नहीं रहता. What we learn, the experiential learning, the application, the practical which you learned during your college days. और यही इस हमारे पाठ्यक्रमों की सार है. इस बात को आप अच्छे से जान लें कि जो पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों को यही जीवन में सबसे अधिक काम आएंगे. Directly they are not fetching you any job, but definitely they prepare you, they make you ready for a better kind of job, for your personality testing, for your interview, for excelling in your job once you enter into the job market. Because we are creating a holistic development. We are trying to make our student a holistic person responsible for the society and the country. आप जानते हैं कि आज के युवाओं की क्या स्थिति है. ड्रग्स, वायलेंस, एग्रेशन, intolerance, impatience, that is leading to stress, depression, suicidal tendencies, going to rehabilitation center. ये सारी चीजें क्या है? बहुत पढ़ लिया आपने, बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर भी बन गए, लेकिन आपका पारिवारिक जीवन क्या है? आपका सामाजिक जीवन क्या है? कितने प्रसन्न खुश रहते हैं आप? इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही इन कोर्सेज की योजना बनाई गई. वैदिक मैथ्स भी उसमें से एक है. बहुत लोग कह सकते हैं, अरे वैदिक मैथ्स क्या पढ़ा रहा है, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. आई मस्ट शेयर विद वन सिंपल एग्जाम्पल, छोटा सा मैं उदाहरण से अपनी बात खत्म करूंगा कि दिस कोर्सेज आर मीन्ट नॉट ओनली फॉर दैट यू आर लर्निंग द फास्टर कैलकुलेशंस एंड ऑल, मेंटल मैथमेटिक्स. ये आपको अपने करियर में भी सहायता करता है. IIT, IIM एंड ऑल्सो योर GRE टाइप ऑफ एग्जाम्स. आप जब पढ़ाते हैं ना कैट की कोचिंग में, मुझे प्रोफेसर प्रभात मित्तल जी बता रहे थे कि सर कैट की जो कोचिंग होती है उसमें तो आप यही स्मार्ट मैथ के नाम से और किसी और नाम से वैदिक मैथ केवल पढ़ाते हैं. सो दैट वे वी आर ऑल्सो हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स इन अदर इनडायरेक्टली फॉर गेटिंग थ्रू इन देयर और फॉर एक्सेलिंग इन देयर लाइफ. वैदिक मैथ्स के बारे में बहुत विस्तार से हमारे जो रिसोर्स पर्सन वो आपको बताएंगे, हमारे प्रोफेसर प्रभात मित्तल जी बताएंगे, और ऑफ कोर्स हमारे जो तो बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट टुडे, आवर जैन मुनीस, जैन एसेटिक्स. और आप इस पाठ्यक्रम को अच्छे से पूरा करें. अटेंडेंस इज कंपल्सरी, बाकी प्रोफेसर प्रभात मित्तल बताएंगे, सो दैट you can take a message to the university and your college and also your colleagues definitely कि WAC courses are not just a course for चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया नहीं है. यस, बहुत बड़ी चीज़ है. कोर कोर्सेज से कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कई बार आप अगर आप एकेडमिक्स में नहीं जाते हैं, आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो कोर कोर्सेज से इसका ज़्यादा महत्व है. इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सबको मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप इस पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं अपने महाविद्यालयों में. अच्छे से इसको तैयार करें और विद्यार्थियों की ओर अच्छे से ले जाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद से. I would now like to request Muni Jagrit Kumar to address the gathering. के चरणों वंदन. और आज यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट प्रोफेसर्स, जो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष की सर्वोच्च संस्था जो है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन DU यूनिवर्सिटी, तो ये अपने आप में एक बहुत विशिष्ट बात है कि आज की जो ऑडियंस है वो क्रीम ऑडियंस है.
कि जो बच्चों को एक तरह से संभालती है, और हमारा भी लक्ष्य यही होता है कि ट्रेन द ट्रेनर्स, जो ट्रेन करते हैं उनको ही ट्रेन किया जाए तो वो मासेस तक कोई भी चीज़ जाती है। और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा अद्भुत टॉपिक है, जो है वैदिक मैथमेटिक्स, जो भारत की एक बहुत बड़ी देन है। और मुझे लगता है कि जैसे योग दिवस एक दिवस के रूप में मनाया गया, अगर कोई ऐसी कोई लीड ले कि वैदिक डे या वैदिक मैथमेटिक्स डे, क्योंकि ये भी पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी देन है। और मुझे लगता है भारतीय ऋषि मुनियों ने जो इसके ऊपर एक कार्य किया है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। वो अलग बात है, हम हिस्ट्री को बार बार बताते हैं, सुनाते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हिस्ट्री बनाने वालों ने तो बना दी अपने हिसाब से, पर आगे जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, कैरी ऑन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा वेस्टर्न वर्ल्ड ले रहा है। आर्यभट्ट ने जीरो तो बना दिया, पर जीरो और वन से बाइनरी कोड लिखने वाले वो वेस्टर्न थे। पर सबसे बड़ी बात है कि जो रूट था, जो सीड था, और जो आइडिएशन प्रोसेस में जो सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई है, तो वो मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर ने, इंडियन ऋषि मुनियों ने। और उसी के आधार पे वो बेस बना करके कंप्यूटर्स का आविष्कार हो गया, क्वांटम कंप्यूटर्स बन गए, कितनी कितनी चीज़ें बन गई। तो मैं समझता हूँ कि वैदिक मैथमेटिक्स एक बहुत अद्भुत चीज़ है, और उसमें कंटिन्यूस रिसर्च होना चाहिए, एड ऑन होते रहना चाहिए, जिससे समय के हिसाब से उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती रहती है, तो कुछ नयापन भी आता रहता है। और आज की जो ओवर डिजिटल कंजम्पशन वाला जो एक एरा चल रहा है, जिसमें कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत कोई भी बच्चा कैलकुलेटर में जाता है। 1+1 भी हमने तो सुना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वहां तक होता है कि 2x2 भी करवाना है तो वो कैलसी लेगा सबसे पहले। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ रही है, पर जो अपना इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वैदिक मैथमेटिक्स एक गेम चेंजर बन सकता है पूरे विश्व में, क्योंकि ब्रेन जो हो रहा है ना, धीरे धीरे समय के साथ डिग्रेड होते जा रहे हैं, क्योंकि उसका यूज नहीं हो रहा। यूज नहीं होगा तो धीरे धीरे वो चीज है नहीं है के बराबर हो जाएगी। पर मैं आज कुछ वैदिक मैथमेटिक्स की क्या स्पेशलिटी है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, और ओवरऑल मैथमेटिक्स की क्या विशेषताएं है। तो क्योंकि मैथ्स एम से चालू होता है, तो हम एम पावर को थोड़ा देखेंगे कि हाउ विदाउट मैथ्स वी कांट सर्वाइव एट ऑल। और आज जो भी डेवलपमेंट जो विश्व ने देखा है, वो अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो ये डेवलपमेंट भी नहीं होता। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा कि मिस्ट्री ऑफ नेचर, आज जो कॉस्मोलॉजी की जो मिस्ट्रीज है उसको अगर हल करना है तो एक ही उपाय है, और वो है मैथमेटिक्स। चाहे आप देख लो फिबोनाची सीरीज विच कैन बी सीन ऑल ओवर द नेचर, जितनी नेचर की खूबसूरत चीजें उसमें फिबोनाची सीक्वेंस देखी जाती है। और दूसरी बार देखे केपलर्स लॉ करके आता है, जो प्लैनेट की जो ऑर्बिट्स होते हैं और वो जो रेशियोज होता है वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर ही है। तो नेचर में जितनी भी चीजें पाई जाती है वो सारी मैथमेटिकल चीजें होती है, एंड नेचर टॉक्स विथ अस थ्रू मैथ्स, ये तो हमने सुना ही है। तो सबसे पहले मिस्ट्री, कि जितनी मिस्ट्रीज को हमको अगर डिकोड करना है तो मैथ्स इज ओनली सॉल्यूशन। आप ये देखिए कि हम मैथ्स के अलग एक पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि 0 से 9 तक का जो देखते हैं, कुछ ऐसी मल्टीवर्स भी हो सकती है जहाँ पे कुछ और पर्सपेक्टिव होगी। और मैं तो मल्टीवर्स की बात नहीं करता हूँ, मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगा कि इंडिया में ही या वर्ल्ड में ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने मैथ्स का पूरा अलग ही एंगल लाया, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। सेकेंड जो चीज है, एम फॉर माइंडफुलनेस। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, और अटेंशन स्पैन की जो प्रॉब्लम देखी जाती है। जो रील की दुनिया है उसने रियल दुनिया को पूरा तहस नहस कर दिया है। जो पहले अटेंशन स्पैन कहा जाता था कि 48 मिनट्स होता था, उसीलिए हमारे जो क्लासेस होते थे 45 मिनट्स के होते थे,
आज अगर हार्वर्ड को पूछा जाए तो वो बताती है, हार्वर्ड बताता है कि अटेंशन स्पैन इज जस्ट, कैन एनीबडी टेल? हाँ, 12 मिनट्स। सर ने तो बहुत अच्छी बात बताई है, पर एक्चुअल अटेंशन स्पैन इज जस्ट 5 सेकेंड्स। आप देखते होंगे, आप खुद भी फेस करते होंगे, जब आप रील्स देखते हो तो 3-4 सेकंड्स में ही आप पता लगा देते हो देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो आप स्वाइप कर देते हो। तो उसमें ये वैदिक मैथमेटिक्स कैन बी अ वेरी बिग टूल, जिससे हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ सके। और आप समझते हो कि जितनी भी बड़ी बड़ी हायर एजुकेशनल स्टडीज होती है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स की हो, चाहे सीए हो, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, सब में अटेंशन चाहिए चाहिए चाहिए। जब होगा जीवन में फोकस, तभी तो मिलेगा सक्सेस चौकस, नहीं तो फिर कंपनी हो जाएगी बोगस, फिर संसार निकालता रहेगा आपका कस, आप हो जाओगे टस से मस, फिर बोलोगे अब हो गया बस। इसलिए मैथमेटिक्स, उसमें भी वैदिक मैथमेटिक्स कैन बी द बेस्ट टूल टू हैव फोकस। तो फोकस, माइंडफुलनेस, और मैं तो कहता हूँ मेडिटेशन, जो हम अल्फा वेव्स की बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रिगर करना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज द बिगेस्ट थिंग, मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो ये तो जीनी है। और सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमको कोई चीज को पेनिट्रेट करना है तो मैथ्स कैन बी द बेस्ट टूल, क्योंकि उससे हम उसको एक्सेस कर पाते हैं और उसको हम जी पाते हैं। क्योंकि कॉन्शियस वर्ल्ड में तो बहुत रहते हैं, पर हाउ टू गो इन सबकॉन्शियस माइंड। तो सेकंड इज माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, दिस इज द बिगेस्ट टूल फॉर मेडिटेशन। थर्ड इज mechanism of logic and miracle of intuition. Initially, whichever thing we do it logically. You see that when you have drive the car, you used to use logical mind, your conscious mind, कि कौन सा गियर लगाना है, कब क्लच लगाना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पर आज आप देखो कितने लोग गाड़ी चला करके आए होंगे, उनको पता भी नहीं है गाड़ी में बैठे और इधर पहुंच गए। दे आर डूइंग मल्टीटास्किंग एट द सेम टाइम। कैसे? बिकॉज वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो जो भी मैजिक होते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होते हैं। तो पहले तो लॉजिकल माइंड होता है, फिर क्या होता है? इंट्यूशनल माइंड। आपको पता होगा कि शकुंतला देवी की बात आती है, व्हेन somebody asked to go and do program in Russia, she told no, as there is no god, she will not be going in Russia to do any session। तो बताया जाता है, शकुंतला देवी कहती थी कि मैथ्स कैसे हो जाता है मुझे पता नहीं चलता है। अब देखो, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बिकॉज इनिशियली क्योंकि वो बचपन से करते जा रहे हैं और वो एक ही फील्ड को पकड़े हुए थे, तो इनिशियली में भी लॉजिकल, बट एट लेटर स्टेज हाउ मल्टीप्लीकेशन, हाउ एडिशन इज टू गो, इट इज टू गो लिटिल बिट ऑफ इंट्यूशनल। और वो इंट्यूशनल के कारण से उनको आंसर कैसे आ जाते हैं उनको खुद को ही नहीं पता चलता है। उसीलिए उनके नाम पे कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। तो मैं समझता हूं कि मैथ्स इज मैकेनिज्म ऑफ लॉजिक, बट एट द एंड मिरेकल ऑफ इंट्यूशन। वैसे ही हम रामानुजन की भी बात करें तो रामानुजन के बारे में भी यही आता है। हार्वर्ड में जब थे वो, तो उस समय पर उनके आंसर तो आ जाते थे, बट ही वॉज नॉट एबल टू नो दैट हाउ इट केम। तो मैनी ऑफ द प्रोफेसर्स ऑल्सो यूज्ड टू से कि भाई ये तो पागल है, साइकेट्रिस्ट के पास ले गए और दवाई वो खिलाई और वो वहीं पे उनका तो छोटी एज में ही हो गया। अब आप ये देखिए, बट एट द लास्ट विच एवर फॉर्मूलाज और विच एवर थियरी और विच एवर आंसर ही गॉट इज बिन प्रूवन टिल नाउ ऑल्सो, एंड इट इज वर्किंग टिल नाउ। तो वो कैसे कर पाए? तो मेजरली इट वॉज बिकॉज ऑफ इंट्यूशनल। कोई कहता था, जैसे वही कहते थे कि कोई देवी आती थी कान में बोलती थी, ऐसा कुछ भी आता है। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो आपको काफ़ी चीज़ें पता है मतलब। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैथ्स जो है वो बहुत चीज़ें डिकोड कर सकता है। और एक बड़ी बात, मसल्स, जैसे हम खुद की बॉडी बनानी है तो हम जिम में जाते हैं ना, योगा करते हैं, जिम करते हैं, तो हम खुद की बॉडी बना पाते हैं। पर आप ये देखिए कि हमारा हार्डवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टूल है? हमारी बॉडी है, हमारा ब्रेन है। क्योंकि गवर्न तो यही करता है, हेडक्वार्टर तो यही है। जैसे लाइफ साइंसेस के हेडक्वार्टर हमारे निरंजन जी है,
तो इनको पकड़ लिया तो सब कुछ आ गया। तो वैसे ही अगर दिल्ली में अगर कॉलेजेस में जाना तो डीयू है, तो हेडक्वार्टर जो है वो ये है। अब इनकी भी जिमिंग तो जरूरी है, तो हाउ दैट जिम कैन बी डन? तो मैं समझता हूँ वैदिक मैथमेटिक्स इज द बिगेस्ट टूल कि जो इसके मसल्स को भी बराबर रख सकता है। और आप देखो अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम और ब्रेन आज, जैसे एंड्रू हिबरमैन जो एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है जिनके काफी पॉडकास्ट भी आते हैं, वो बताते हैं कि ब्रेन श्रिंक हो रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दोज ब्रेन। तो वो जो ब्रेन श्रिंक हो रहे हैं, काफी ग्रे एरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, न्यूरॉन्स को वापस कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, तो सबसे बेस्ट टूल यही है, वो है मैथ्स, वैदिक मैथ्स। तो एक और बात जो है मिरर ऑफ डिसीजन, इट एक्ट्स एज ए मिरर। क्योंकि आप ये देखिए बिजनेसमैन कौन सक्सेसफुल होते हैं? जो ईक्यू से चलते वो सक्सेसफुल होते हैं या जो आईक्यू से चलते वो सक्सेसफुल होते हैं? बैलेंस करना भी जरूरी है, बट ईक्यू जो जाएगा तो ही विल नॉट बी सक्सेसफुल, क्योंकि वो तो कैसा होगा, इंस्टेंट रिएक्शन होगा, इमोशन के आधार पे चलेगा। तो जहां आईक्यू के ऊपर बात आती है, जहां स्टेट्स की बात आती है, जहां पे नंबर्स की बात आती है, तो वही बिजनेसमैन आगे बढ़ता है जो उस पर रिलाई करता है। और आप देखिए फॉलोअप का सिस्टम भी अगर हम देखें, हम बोलते हैं ना रेटिंग करेंगे, गूगल फॉर्म में भी रेटिंग करते हैं 1 to 10, इमोशंस को भी हम रेटिंग में ला रहे हैं, तो आप नंबर्स के ऊपर तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो आपको डिसीजन भी वर्ल्ड वाइड लेना है। आप देखो ना जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो पहले क्या करती है, रिव्यू करती है, बैलेंस शीट को रिव्यू करती है, उनके उनका पूरा देखती है, तो वो सब चीज किस में होती है, तो नंबर्स में होती है, नंबर्स के थ्रू ही उसका आउटकम निकलता है। तो मिरर, इट इज योर मिरर, विदाउट इट यू कांट टेक एनी डिसीजंस। फिर मैरिज ऑफ लॉजिक, मैरिज ऑफ लॉजिक एंड इंट्यूशन। अब आप ये देखिए, अब आर्किटेक्ट का जितनी चीजें आप देखते हो आसपास में, वो सारा किस पे है, मैथ्स पे ही है। अब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो, कंप्यूटर्स बना रहे हो, जितनी भी चीजें आसपास में दुनिया में देख रहे हो, उसका मेन सोर्स क्या है, मैथ्स है। और उसमें भी वैदिक मैथ्स कैन बी अ गेम चेंजर। तो हम वो भी देखते हैं लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनाई थी। मुझे कभी कभार ऐसा लगता था वाई ही इज पेंटिंग गॉट सो मच रिनाउंड। अब मोनालिसा में तो खाली एक लेडी का फोटो है, उसमें तो कुछ है नहीं और कुछ। तो मैंने थोड़ा बहुत टाइम तक मुझे आंसर नहीं मिला, एंड मेजोरिटी ऑफ मे यू हैव केम टू नो इट एट लेटर स्टेज। तो उसमें सबसे मेन जो था जिसके कारण से उसको इतना तवज्जो दिया गया, वो था, यस वंडरफुल, गोल्डन रेशियो, जो 1.698, हाँ, तो वो फिबोनाची सीरीज से ही आती है। तो वो जो गोल्डन रेशियो आप देखो शेयर मार्केट में भी, मुझे पता है कि हमारे ही कोई थे जो बम्बई में रहते थे, और उनका जो बच्चा था, उनका शेयर मार्केट का बहुत बड़ा एम्पायर है। उनका बच्चा यूएस लंदन में स्पेशल यही सीखने गया फिबोनाची सीरीज का, और वो शेयर मार्केट में पूरा अप्लाई करते हैं। अब आप देखो कि बिजनेसेस भी जो गवर्न होते हैं वो कहीं ना कहीं मैथ्स के थ्रू, और ऐसी जो गोल्डन रेशियोज जो होते हैं जो नेचर से मिलती है उससे ही गवर्न होते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स, तो अगेन मैथ्स नई कुछ नहीं है, कोई स्पेशल बात नहीं है। मैथ्स इज ऑल अबाउट सिमेट्री, आप कितनी सिमेट्री निकाल सकते हो। अब हम जब आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, तो कई चीज़ें जो है वो मेरी इन्वेंटेड भी है, तो मैंने कहीं बुक को रिफर नहीं किया था, मुझे ऑटोमेटिक मिल गई। तो मैं कोई ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ बड़ा किया, मैंने उस सिमेट्री को पकड़ा, ऑब्जर्वेशन किया और वो मिल गया, मुझे मिल गया तो वो एक फायदा हो गया। तो मैथ्स के जो शॉर्टकट्स मिलते हैं वो कहीं ना कहीं सिमेट्री से मिलते हैं और उसी से फॉर्मूला डेवलप होते हैं। तो मैथ्स की दुनिया बड़ी टेढ़ी है। उसमें एक व्यक्ति का मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, जो बॉर्न ऑन अ ब्लू डे करके एक बहुत अच्छी बुक है जिसके राइटर है डेनियल टेनेट करके। तो उन्होंने मैथ्स की पूरी परिभाषा ही बदल दी। आपको बड़ा एक अटपटा लगेगा। नॉर्मली वी यूज्ड टू डू मैथमेटिक्स लॉजिकली, बट ही डू इट इंट्यूशनली। वो कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। वो जैसे 5+5 करना है या 5+10 करना है, ये तो मैं एकदम शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो शेप्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे, शेप्स लेंगे,
5 का ये 10 का ये वो मिलेगा, तो जो उसका आंसर आएगा वो शेप में आएगा, एंड ही हैज टू डिकोड दैट शेप विद दैट नंबर। तो ऐसे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े फ्रैक्शन में डिविजन जो होते हैं वो इसी के थ्रू करते हैं, और पूरा एक नया सिस्टम बना रहे हैं कि ऐसे भी कुछ मैथमेटिक्स को देखा जा सकता है। और वो भी ऑटिस्टिक व्यक्ति थे, तो जो ऑटिस्टिक होता है उसका एक फायदा बड़ा ये भी होता है, दे आर वेरी मच इंट्रोवर्ट, दे आर वेरी मच इनटू देमसेल्फ। तो मेडिटेशन करते, ये सब चीज़ें करते हैं, तो ऑटोमेटिक उनको कहीं नई चीज़ें मिलती है। फिर वैदिक मैथमेटिक्स, मदर ऑफ एवरी इन्वेंशन। आप इन्वेंशन कोई भी करो, मैथ्स तो उसमें आएगा ही, चाहे एआई का करो, चाहे आप सॉफ्टवेयर का करो, चाहे जो भी चीज़ करो। कैलकुलस देख लो, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर थ्रू क्वांटम कंप्यूटर्स एंड थ्रू कैलकुलस, इट इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। फिर हम देखें मेजर ऑफ इमोशंस, हमारा खुद का जो बीपी देख लो, डायबिटीज़ देख लो, जितनी भी ये बीमारियों की जो बात होती है वो उसका मेजरमेंट कैसा होता है, इमोशंस के जो मेजरमेंट होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी फील्ड है, और वैदिक मैथमेटिक्स कैन बी अ वेरी बिग थिंग विच वी कैन गिव टू द ग्लोबल ह्यूमन स्पेस, एंड वो एक रिमार्केबल चीज़ कहीं ना कहीं बनेगी। तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी, क्योंकि मैथ्स कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पर जो अच्छा नहीं लगता है मतलब वो जी नहीं सकते एक्चुअल में, तो बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन मैथ्स। आपका मोबाइल फ़ोन है तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ उसी पे है, डेटा है तो पूरा उसी पे है, और डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बोले आप लोगों को, 9 पॉइंट्स बोले। कैन एनीबडी रिपीट दोज पॉइंट्स? हमने कुछ 9 पॉइंट्स बोले। तो सबसे पहला पॉइंट, यस, मिस्ट्री, यस, माइंडफुलनेस, थर्ड पॉइंट मेडिटेशन, मैकेनिज्म ऑफ लॉजिक, मिरेकल ऑफ इंट्यूशन, फोर्थ पॉइंट मसल, कि मसल को स्ट्रॉन्ग करना है हमको, फिर मिरर, फिर मैरिज ऑफ लॉजिक एंड इंट्यूशन, कि हमारा राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन बोथ गेट्स कनेक्टेड वाया मैथमेटिक्स, फिर मैजिक, हाँ सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं हेल्प करता है, फिर मदर ऑफ एवरी इन्वेंशन, हाँ मल्टीटास्किंग। तो मैं वापस एक बार पॉइंट रिपीट करता हूँ, आप देख लीजिए एक बार। मिस्ट्री ऑफ नेचर, सेकंड है माइंडफुलनेस, थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ लॉजिक, मिरेकल ऑफ इंट्यूशन, फोर्थ पॉइंट इज मसल ऑफ माइंड, फिफ्थ पॉइंट इज मिरर ऑफ डिसीजंस, मैरिज ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन, मैजिक ऑफ शॉर्टकट्स, मदर ऑफ इन्वेंशंस, एंड मेजर ऑफ इमोशंस। तो मुझे लगता है कि मैथ्स की अगर परिभाषा देखें तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती है, इसमें समराइज हो जाती है कि मैथ्स हमको क्या क्या देता है। उसमें भी बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। तो आज विश्व की जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक, क्योंकि हम डोन्स की तो बात कर लेते हैं, ड्रग्स मत लो, एडिक्शन मत करो, मोबाइल यूज़ मत करो ज़्यादा, पर हम डूज की बात कब करेंगे? क्योंकि डोन से पहले हमको डूज बताना पड़ेगा। तो डूज आर व्हाट? तो उसमें एक सबसे बड़ा जो रोल प्ले हो सकता है वो वैदिक मैथमेटिक्स का हो सकता है, कि पहले ये डूज, तो ऑटोमेटिक वो ड्रग्स भी नहीं लेगा, उसको ऑटोमेटिक वैसे हॉर्मोन्स सीक्रेट होंगे, जो यूफेरिज्म का स्टेट हम ड्रग्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर मैंने ये फील किया व्हेन आई यूज्ड टू डू मैथमेटिक्स, मुझे वो सेम फीलिंग आती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, एक जॉय, एक ब्लिस, एक यूफोरिज्म वाली फीलिंग। तो मुझे लगा कि जो हार्मोन्स और जो केमिकल्स जो उसके थ्रू सिक्रीशन होता है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स करने से भी बहुत सीक्रेट होता है। और एक पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जो हम थर्ड आई बोलते हैं, शिव जी की थर्ड आई, तिलक भी लगाते हैं। तो मैंने ये भी फील किया कि एक स्टेज के बाद मैथमेटिक्स कुछ भी करते हैं तो आपके इधर चलता है प्रोजेक्टर की तरह, तो डिजिट्स आपके ऑटोमेटिक चलने लग जाते हैं, कैसे आंसर है आपको पता नहीं। तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, और ये जितनी भी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना है बायोलॉजिकली, तो मैथमेटिक्स कैन बी अ वेरी बिग रोल, कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ बातें मैंने बताई है, और टेक्निकल सेशन बाकी है। हाँ वो भी है। तो सर का बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले रहा, क्योंकि हम इन्होंने तो हमको शेयर किया, हमने देखा कि ठीक है देखते हैं,
पर इनका जो फॉलो अप और ये जो रहा वो इतना तगड़ा रहा और इतने कम समय में एकदम आत्मीयता से जुड़ गए। मुझे लगता है हम इतनी सारी जगह जाते हैं, संस्थाओं में जाते हैं, तो पर इतना अच्छा एक फॉलो अप, इतना एक अच्छी एक, अब मेहमान नवाजगी तो नहीं बोलेंगे, खातिरदारी बोलो, जो भी बोलो, एक्स वाई जेड, तो वो सर की एक अद्भुत थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर ने हमको बुलाया और हमने आपको कुछ चीज़ें शेयर की, और भी सेशन है जिसमें हम शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हमने की है। जो आईआईटी दिल्ली में भी हम गए थे तो वहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, वहाँ पे डिकोडिंग नहीं किया था, पर वहाँ तो उनको डेमोन्स्ट्रेशन मिला, आज हम डिकोड करेंगे इधर, तो आपको सीधा माल मिलेगा, उनको तो मतलब एक प्रेजेंटेशन मिला था उसका। तो उसमें मैंने यही कोशिश की है कि आपको जो भी एक स्पेशल जो टेक्निक्स है, जो यूनिक है, जो जल्दी से आपको कहीं मिलेगी नहीं, तो वही हमने लेने की कोशिश की। और बेसिकली आई हैव आल्सो रिटन अ बुक ऑन हाउ ईच एंड एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स गोज टिल इन्फिनिटी, कि अगर कोई फॉर्मूला आपने बना दिया तो वो इन्फिनिटी तक ही जाएगा। तो वैदिक मैथमेटिक्स में वही कोशिश की। तो अब हम मुनीश्री को भी सुनेंगे, तो मेरा विनम्र निवेदन। भीक्षु नयनमवतारं नयतुमि। ज्योतिपुंज युग प्रधान अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, निरंजन जी, और यहाँ पर उपस्थित all the esteemed, engaging, enlightening professors present here at the esteemed DU campus. आज हम इस स्वर्णिम प्रभात पर प्रभात जी के साथ एक अच्छी चर्चा के सत्र में जुड़े हैं, और आज का जैसा विषय है हमारा वैदिक मैथमेटिक्स, मेंटल मैथमेटिक्स, और किस तरह से मैथमेटिकल इनोवेशन, मैथमेटिकल प्रोसीजर्स हमारी लाइफ को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकती है। तो आज हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स, जैन मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। हम सब जो जीवन जी रहे हैं उसमें हर चीज़ कहीं ना कहीं मैथमेटिकल है, कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक माप है। 3 शब्द हैं, कितना, कितने और कितनी। ये सारे शब्द मैथमेटिक्स को डिनोट करते हैं। कितना बड़ा होगा, आप जब कोई प्रोग्राम में जाते हो, कितना बड़ा होगा, इम्पैक्ट कैसा होगा, एवरीथिंग इज ऑन दैट क्वांटिफाइबल थिंग। सामान लेके आए, कितना लेके आए, महंगा था, कितना महंगा था, कितने लोग होंगे, तो कितना, कितनी और कितने, इससे हमारी दुनिया बहुत जुड़ी हुई है। आज हम जिस दुनिया में हैं उसमें से बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है जो अनएक्सप्लोर्ड है, अनऑब्जर्व्ड है। जहाँ हम एक तरफ ये कहते हैं कि हम गणित में बहुत आगे बढ़े हैं, हम एक दूसरी तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा गणित ऐसा है जिसको हम नहीं जानते। आज मैं कौन सा एक शब्द बोलूंगा जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आने वाली, ऐसा कौन सा शब्द होगा
जिसके आपसे आपके मन में क्यूरियोसिटी आएगी। मैं कौन सा ऐसा एक शब्द बोलूंगा कि आप में मन में एक क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कैसे कह दिया। आपकी इमोशन को स्विच कर देगा, उसका वेट इतना भारी होगा, ये आपको एकदम लाइट करने वाला होगा। जैसे आपने एक चेस बोर्ड देखा है, चेस बोर्ड में 64 कॉलम्स है, 16 प्लेयर्स हैं, 8 मेन प्लेयर्स हैं। उसमें सबसे मेन कौन है? वो है किंग, राजा। पर कईयों ने क्या कहा? रानी। सबसे पावरफुल कौन है? वो रानी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? राजा। ये लाइफ का मैथमेटिक्स है। अब राजा को बचाने के लिए शायद रानी को शहीद भी करना पड़े, और एक सिपाही उस किनारे पर पहुंच जाए, वो रानी बन सकता है। मतलब रानी का पुनर्जन्म भी हो सकता है, राजा का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। रानी कहीं भी जा सकती, कितना भी दूर जा सकती, राजा नहीं जा सकता। राजा तो बस धक्का लगेगा तब वो थोड़ा सा चलेगा बस। तो वैसे ही हमारी ये लाइफ है, इसमें हमें ये देखना है कि राजा कौन है और रानी कौन है। चेस का जो एक एक मूव होता है, एक जनरल आदमी खेलता है, पर जो मैथमेटिक्स और ऑब्जर्वेशन को यूज करता है, वो क्या करता है कि वो न केवल मैथमेटिक्स में अपने स्टेप को देखता है, पर उसके कारण होने वाले 64 कॉलम्स में क्या क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं, और फिर उसका क्या मूवमेंट होगा, उसका क्या होगा, वो सारा प्रेडिक्शन कर रहा है। तो मैथमेटिक्स इज ए साइंस ऑफ प्रेडिक्शन। इसको लेकर अपने प्राचीन शास्त्रों में आता है अष्टांग निमित्त विज्ञान। मतलब आपके 8 अलग अलग अंग हैं, जैसे आपके कान है, आपका ये कपाल है, आपकी फेस रीडिंग, आपकी पामिस्ट्री, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपका फुटप्रिंट, आपके फिंगरप्रिंट्स, हर चीज, आपका अंगुष्ठ, ये बता देता है कि आप कौन है। तो ये साइंस ऑफ प्रेडिक्शन कैसे आया? इट इज टोटली मैथमेटिकल। एवरीथिंग, आपके शरीर पर एक तिल भी है, उसका भी एक मीनिंग है। मतलब जितनी चीजें दुनिया में है, उसके मीनिंग को समझने का जो टूल है वो मैथमेटिकल है। अपनी लाइफ के मीनिंग को समझना है तो अपने लाइफ के मैथमेटिक्स को हमें समझना होगा। मतलब मैथमेटिक्स इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट द डिजिट्स, इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट द आईटी सेक्टर, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू टेक्नोलॉजी, बट इट परवीड्स थ्रू आउट एवरी पार्ट एंड पार्सल। मतलब ये क्या है? एक साइंस ऑफ प्रेडिक्शन है, ये साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये साइंस ऑफ हार्मनी है। हर जगह हार्मनी है जब वो एक बैलेंस बना हुआ है। एक साइकिल की तरह लाइफ है हमारी। साइकिल में एक पैडल ऊपर होगा तो एक के नीचे होना बहुत जरूरी है। पति पत्नी में एक बहुत तेज तरारे थे, एक का काम होना भी अपेक्षित है। अगर दोनों फाइटिंग पावर वाले होंगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, शायद डाइवोर्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक पेडल ऊपर जाता है तब एक नीचे चला जाए बस। अगर ये बैलेंस है, और ये बैलेंस हमें मैथ सिखाता है, वो है श्रम और विश्राम का संतुलन। हम लोग कई बार एक सेशन लेते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, तो हमने उसके लिए एक फॉर्मूला ढूंढा कि वर्क लाइफ बैलेंस। आप में से कितने लोगों को लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है? और यही आपके मैथ्स को और आगे ले जाता है जब आप लाइफ के मैथ्स को सेटल्ड रखते हैं। वरना लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में बैटल हो जाता है और वो सेटल नहीं रह पाता। टू मेंटेन द लाइफ, अ सेटल्ड लाइफ, व्हाट वी नीड इज 9-8-7 फॉर्मूला। वर्क, लाइफ और बैलेंस। वर्क के लिए 9 आवर्स, 8 आवर्स फॉर लाइफ एंड 7 आवर्स फॉर बैलेंस। क्योंकि जनरली ऑफिस आवर्स, जनरली मैं जनरल बात यहाँ पे कह रहा हूँ, वो 8 आवर्स की जॉब होती है। तो अगर आपने 1 घंटा एडिशनल रखा है जो ट्रैवल में जाएगा या आपके नेटवर्किंग में जाएगा, आप जिनके साथ काम करते हैं, क्या आपने 3 मिनट भी एक्स्ट्रा उनके साथ स्पेंड किया है? वी ऑल लिव अ फॉर्मल लाइफ, बट द फाउंडेशन स्टेज इन द इमोशन दैट वी हैव, दैट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वी हैव। We don't have that we time with them. We cannot utilize the collective power.
तो इम्पोर्टेंट है कि वो कलेक्टिव पावर को हमें यूज करना है। और वो मैथ्स ये कहता है कि आप खुद से काम करोगे तो एक दिमाग काम करेगा, पर अगर इस, जैसे हम निरंजन जी को देखे तो इन्होंने किस तरह से सारी कम्युनिटी को, इतने प्रोफेसर्स को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो कलेक्टिव कैपेसिटी है, कलेक्टिव पावर है, यूजिंग वन ब्रेन इन सच ए वे दैट वी कैन एंगेज मल्टीपल ब्रेन एट अ टाइम। और मल्टीपल ब्रेन्स को कनेक्ट करके रखना, जो कंप्यूटर्स भी मल्टीपल कनेक्ट करते तो बहुत बड़ा पावर बन जाता है, सुपर कंप्यूटर भी बन जाता है, मल्टीपल कैपेसिटी को होल्ड करता है, पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट यूनिट्स को हार्मोनी में लेके चलना, उसका मैथमेटिक्स कितना स्पेशल होगा, कितना डिफरेंट होगा। तो वर्क के बाद इंपॉर्टेंट है लाइफ, कि आप लाइफ के लिए भी 8 आवर्स आप रखते हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, चाहे बॉडी का न्यूट्रिशन हो, आपकी बायोलॉजी के लिए, आपकी इमोशन के लिए आप कितना टाइम रखते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास 1 घंटा भी दिन में है अपने इमोशनल रेजिलियंस के लिए, अपने इमोशनल्स के मैनेजमेंट के लिए? तो हमने एक डिस्कशन किया और इन दिनों में हमने एक टॉपिक पर थोड़ा वर्क किया, वो है इमोशनल जिम। मतलब जैसे एक बॉडी के लिए हम जिम करते हैं, वैसे अपने इमोशंस के लिए भी एक जिम होना चाहिए, मतलब अपने इमोशंस के लिए भी एक वर्कआउट होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम एक चेंज ला सके। क्योंकि बात अभी जैसे कि मुनि जी ने कि लोग ड्रग्स में जा रहे हैं, प्रॉब्लम बोलने से क्या होगा, सॉल्यूशन देना होगा। तो सॉल्यूशन है जैसे एक इमोशनल जिम, वो अपने इमोशंस पर इस तरह से वर्क करे कि उसको ड्रग्स लेने की तलब ही ना हो, उसके अंदर वो भाव ही ना आए। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उस चीज़ के अंदर वर्कआउट करें, अपने इमोशंस के अंदर कैसे रेजिलियंस लाए, कैसे ऐसी एक्टिविटी के साथ एक रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज हो, मैनिफेस्टेशंस हो, और एक चेंज हम अपने अंदर ला सकें। तो अपने 7 आवर्स हो जो हमारी क्वालिटी लाइफ के लिए हो, और 8 आवर्स सॉरी, और 7 आवर्स है फॉर द बैलेंस। बैलेंस मीन्स स्लीप। आप में से कितने लोग हैं जो ये फील करते हैं कि दे हैव इनएडिक्वेट स्लीप, दे फील वेरी स्लीप? और उसका टेस्ट सिंपल है, अगर संडे को छुट्टी के दिन ज़्यादा नींद लेना आपको पसंद है, इसका मतलब आप इनएडिक्वेट स्लीप के शिकार हैं। जो लोग भरपूर नींद पहले से ले रहे हैं, भरपूर का मतलब है साउंड स्लीप, इफ दे हैव साउंड स्लीप, इसका मतलब उनका गणित सही चल रहा है। गणित का मतलब है श्रम और विश्राम का संतुलन, गणित का मतलब है संतुलन। तो ये हार्मनी है, और हार्मनी रहेगी तो आपकी लाइफ हार्मोनियस रहने वाली है। हैप्पीनेस विल कम फ्रॉम विद इन, इट इज ऑल द बाई प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू हैव। बस वो गणित को देखना है कि आज मेरा बहुत एक्सर्शन हो गया एक एरिया में, तो मुझे कौन से दूसरे एरिया को रिलैक्स करना होगा। आज हो सकता है कि कोई आयोजना में मुझे बहुत ज्यादा श्रम लग गया है, तो मुझे क्या चीज ड्रॉप करनी जरूरी है। इफ आई वांट टू बी टॉपर इन समथिंग, आई नीड टू बी अ ड्रॉपर इन समथिंग ऑल्सो। टू गेन समथिंग आई हैव टू बी रेडी टू लूज समथिंग। और भारत ने न केवल जीरो को इन्वेंट किया, न केवल अंकों पर काम किया, तो सबसे बड़ा जो काम किया वो अनंत पर, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को लेकर जो काम हुआ है सबसे ज्यादा, तो वो हम देखते हैं जैन आगम के अंदर। जैन शास्त्र, जैन मैथमेटिक्स ने अनंत पर बहुत काम किया। थियोरी ऑफ नंबर इज ए स्पेशल थियोरी इन जैनिज्म वेयर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नंबर। एक नंबर की कैटेगरी है जीरो से लेकर हम एक जितने भी नंबर्स तक जाते हैं। उसके बाद एक सेकंड कैटेगरी उन्होंने ली, वो इनन्यूमरेबल, विच इज फिगरेटिव नंबर्स और नंबर्स प्रेजेंटेड बाय एनालॉजी। जिस नंबर को आप नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रेजेंट जनरली नहीं कर पाते, ठीक है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन से आप कुछ कर भी लोगे आज की डेट में, पर उस जमाने में वो क्या होता था कि एक सिंबल, एक एनालॉजी से वो प्रेजेंट करते थे। उन्होंने बोला कि वो जो देव है ना, उनका आयुष्य कितना बड़ा है। जैसे यहाँ पे डायनासोर्स हैं, वैसे डायनासोर टाइप के ह्यूमंस भी माने गए। जैन स्क्रिप्चर्स कहते हैं ऐसे करोड़ों साल पहले ऐसे ह्यूमन फॉर्म्स होते थे जिनकी हाइट भी कैसी थी, 500 धनुष। बहुत इंटरेस्टिंगली हम सबकी हाइट के बारे में वहां चिंतन किया गया। आप बताइए कि आप सबकी हाइट एक जैसी है, अलग अलग है? एक सिंपल मैथमेटिक्स आज करते हैं जो प्रैक्टिकली हम करने वाले हैं। आप ये बताइए, आप सबकी हाइट अलग अलग है, एक है? कितने लोग मानते हैं सबकी हाइट अलग अलग है? अलग अलग है, बड़ा नेचुरल बात है।
पर हम कुछ बात कर रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबकी हाइट इक्वल है। एक ऐसा मेजरमेंट है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं हम सबकी हाइट इक्वल है। आप देखिए, आपने कोई मंत्र माला के बारे में सुना होगा, कई लोग माला जप वगैरह करते हैं, तो उसमें मन के कितने होते हैं? 108। अब ये देखिए 108 क्यों होते हैं? एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि वाई 108? राउंड फिगर होना चाहिए। राउंड मैथमेटिक्स में तो राउंड फिगर चलते हैं। 100 करो, 200 कर लो, 125 ही कर लो, भले 110 कर लो। अब ये 108 का ये क्या चक्कर है? 108, 1008 ये क्यों चलता है अंदर? तो 108 एक यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है। आप देखेंगे सूर्य और पृथ्वी की दूरी, उनकी रेशियोज पर आप जब वर्क करेंगे, यूनिवर्स के कई ऐसे कांस्टेंट्स पर जब वर्क करेंगे, तो जिसका हमारी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट है, तो वो रेशियो आता है 108। नौकार मंत्र, एक जो जैनिज्म का मेन मंत्र है, उसकी क्वालिटीज जो 5 पदों की जाती है, तो वो नंबर आता है 108। वैसे वैदिक्स में भी 108 है। क्रिश्चियनिटी में 54 की रोजरी करते हैं, वो एक इनवर्ड एक आउटवर्ड करके वो 108 नंबर करते हैं। बुद्धिस्ट चैंटिंग में भी 108 नंबर है। इन मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल कम्युनिटीज, मल्टीपल कल्चर्स, दिस नंबर ऑफ 108 इट इज सीन एज अ मिस्टिकल नंबर और अ स्पेशल नंबर और सीक्रेट नंबर। पर इसका एक बड़ा सीक्रेट है, वो है आपकी हाइट। आपकी हाइट भी 108 है। कितनी है? 108। बोले ये कौन सा यूनिट है भाई? ये सबका तो अलग अलग होगा, सेंटीमीटर अलग होगा, ये अलग होगा। और उम्र बदलती रहती है, तो उम्र में हाइट तो चेंज भी हो जाती है। तो कोई भी गिवन टाइम में देखोगे तो भी आपकी हाइट 108 मिलेगी। तो उसका यूनिट उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग लिया, वो लिया आत्मांगुल। मतलब अपने अपने अंगुल से। आपको मेजरमेंट टेप की भी जरूरत नहीं है। अपने अंगुली से आप जब नापोगे, तो आपकी हाइट, जब आप खड़े रहते हैं और हाथ को ऊपर रखते हैं, मतलब ताड़ासन मुद्रा जैसे आपकी, तो आप जब ताड़ासन मुद्रा में रहते हो, पर ताड़ासन मतलब स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट ही खड़े हो, मतलब पर हाथ ऊपर रखे हुए, तब आपकी हाइट ऊपर से लेकर नीचे नापी जाए, तो अपनी एक अंगुल की विड्थ, इसको माने, इसको एक अंगुल माने, ये 4 अंगुल हमारी, तो ये 4 अंगुल करके करेंगे, तो ठीक 108 अंगुल की हमारी आइडियली हाइट है। अब कोई व्यक्ति बोना हो गया है, कोई व्यक्ति कुछ एक डिफरेंट, अलग बात है। स्टैंडर्ड हाइट जो हमारी, वो एक हाथ मतलब ऊपर रखने पर 108 अंगुल है। तो ये, और अब जो माला फेरी जाती है वो अंगुली से फेरी जाती है, या अंगुली पर या अंगुली से। तो ये माना गया संभवतया, ये हमारी एक रिसर्च है, ये हमारी एक फाइंडिंग्स है, हमारा ये मानना है। और ये आगमों में, जैन आगम में अनुयोग द्वार सूत्र में ये एक मिलता है 108 अंगुल का कॉन्सेप्ट भी। तो हमने उसे इंस्पायर्ड होकर सोचा कि थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके देखा, तो हमें लगा कि एक माला क्यों उंगली से फेरी जाती है और 108 बार क्यों? तो एक अंगुली से हमने मानो एक अंगुली जितनी अपने स्पिरिट को चार्ज कर लिया, और 108 बार करेंगे तो फुल बॉडी रिचार्ज। जैसे मोबाइल को भी आप जब चार्ज करते हो, तो 25% 30% में काम पूरे दिन चलेगा क्या? शायद मुश्किल है। और कई लोग तो फुल चार्ज करने के बाद पावर बैंक और लेके चलते हैं, तो कितने एम्पावर्ड है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वैसे ही ये 108 का भी एक कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज टोटली मैथमेटिकल। इसको, और एक हाथ को कहा गया, एक हाथ बराबर 24 अंगुल। आप अपना नाप सकते हो यहाँ से, 4, 8, 12, 16, 18, 20 और ये 24। वैसे अपना चेहरा देखेंगे तो आपका चेहरा 12 अंगुल का माना गया। आप चाहे तो देख सकते हैं 1, 2 और 3, आप अपना अपना चेक कर सकते हैं चाहे तो। और आपका चेहरा अगर आइडियली है, और जनरली ये देखा जाता है हमारी अंगुली की जो विड्थ है वो हमारी बॉडी का एक अलाइनमेंट है। मतलब ये जो सारा मेंसुरेशन है, ये जो मेजरमेंट है, तो हमारी ये जो सारी पूरा बॉडी की संरचना है, वो कहीं ना कहीं मतलब एक कोहेरेंस के साथ है, एक सिमेट्री के साथ है, एंड इट इज टोटली मैथमेटिकल। इसलिए वो ऐसा कुछ कह पाए हैं, इट इज मैथमेटिकल। और इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से एक धनुष को जोड़ा गया। एक धनुष मतलब 4 हाथ। हमारी हाइट कितनी है? तो बोले 3.5 हाथ। एक हाथ मतलब 24 अंगुल। जब हम ऐसे ऐसे उसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो गया?
अब ये कितना हो गया हमारा, ये 2 हाथ हो गए, इस दोनों हाथ को फैला दिया, कितना हो गया 4 हाथ। इसको बोलते एक धनुष। ये पहले के जो धनुष होते ना वो इतने बड़े होते थे, और वो धनुष तीर कमान चलाते हैं, तो वो हाइट का एक पैरामीटर बना दिया। और उसके ऊपर हाईएस्ट जो हाइट थी, जो मैं कह रहा हूँ डायनासोर टाइप के ह्यूमंस भी हुआ करते थे पहले के जमाने में, तो उनकी हाइट क्या बताएगी, 500 धनुष, 500, मतलब विच वॉज अ वेरी वेरी वॉल्यूमिनस नंबर। और आज हमारा जो हाइट है वो कितना है, 3.5 हाथ है, मतलब 1 धनुष से भी कम है। हमारी जो सबकी हाइट है वो बताई गई कितनी है, 3.5 हाथ, मतलब 24 × 3 72 प्लस 12, मतलब 84 यूनिट्स। अगर हम स्टैंडिंग रहेंगे, हाथ ऊंचे न करें, तो हमारी हाइट कितनी है, 84, और हाथ ऊपर करेंगे तो यहाँ से 24 और ऐड हो गया, तो 84 प्लस 24 इक्वल टू 108। तो 4.5 हाथ, मतलब जब हम हाथ ऊंचे रखते हैं तब 4.5 हाथ जितनी हमारी हाइट बन जाती है। और उसके आधार पर ब्यूटी को डिफाइन किया गया। मैथ्स खाली ड्यूटी नहीं, ब्यूटी को भी डिफाइन करता है कि कौन आदमी सुंदर है। तो उसकी सुंदरता के पैरामीटर, जैसे आज हम कहते हैं कि भी एक 0 वेट है, 0 स्टमक है, ये है वो है, कई तरह के पैरामीटर्स होते हैं। तो वैसे ही पैरामीटर्स थे कि ये तरह का एक बाउल है जैसे पानी से भरा हुआ है, और वो आदमी पानी के अंदर जाके बैठता है, तो जितना पानी डिस्प्लेस होगा, वो डिस्प्लेसमेंट जो है उससे अगर पानी ठीक आधा हो जाता है, इसका मतलब उसका जो वॉल्यूम है, बॉडी का जो वॉल्यूम है, मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो आइडियल है, और वो बहुत ही सुंदर देखेगा वो व्यक्ति। उस व्यक्ति के लिए उन्मान प्रमाण, मतलब ये अनुयुक्तवाद सूत्र के अंदर हम इस पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं ऑलरेडी, पर हमने इस पर एग्जाम्स दिए हैं। तो हम लोग एक श्रुत आराधना प्रोग्राम करते हैं, उसमें काफी पॉइंटर हमने कोडिफाई की। तो उसके अंदर हमने देखा कि द साइंस ऑफ ब्यूटी है, द साइंस ऑफ नेचर है, साइंस ऑफ हार्मनी है, साइंस ऑफ प्रेडिक्शन है, साइंस ऑफ मेजरमेंट है, साइंस ऑफ बायोलॉजी है, ये सारे के अंदर मैथमेटिक्स है। तो वहाँ मान प्रमाण, उन्मान प्रमाण, इसको लेकर एक अलग 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 तोल माप दिए। और किस तरह से, वैसे ही भोजन के लिए, आज भोजन के लिए हम देखते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू किसकी क्या है, कितना लूँ कितना नहीं लूँ, तो उसके भी इंडिकेटर्स डाले गए हैं कि खाते खाते आपको डकार आ गई, मतलब आपने ओवर डाइट कर दिया है। तो एक डाइट के लिए भी एक पैटर्न बताएगी। अगर आपको उबासी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यू आर फीलिंग स्लीपी एंड यू आर लैकिंग ऑक्सीजन, मतलब आपका वेंटिलेशन, इनर वेंटिलेशन जो सिस्टम है वो ठीक काम नहीं कर रहा है। हम वैसे ही देखते हैं मिरर न्यूरॉन्स को, जैसा हम बिहेव करते हैं सामने वाला भी वही मिमिक कर लेता है, जाने अनजाने, जब आपका रेपो क्रिएशन हो जाता है। ये सब एक कैलकुलेशन है कि कैसे हमारे न्यूरोनल कितने सिनेप्सिस हो सकते हैं। और हम आगे के सेशन में और समझेंगे और डिस्कस करेंगे टेक्निकली भी कि कैसे इन चीज़ों को एक्वायर किया जा सकता है जो हम चाहते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आचार्य भद्र बाहु स्वामी, जो अंतिम चतुर्दश पूर्वधर हुए, और उनकी जो क्वालिटीज है हम देखेंगे कैसे उन्होंने इतना बड़ा टेक्स्ट मेमोराइज किया है, विच इज मोर देन 90 करोड़, मोर देन 90 करोड़ श्लोक याद करना एक लाइफ टाइम में, क्या आपको लगता है प्रैक्टिकल? इतना इमेजिन करना, उसको खाली एक बार रीड करना भी शायद बहुत मुश्किल होगा। आपको यही कह दे कोई 99 करोड़ पन्ने पढ़ने हैं पूरी लाइफ में, तो भी शायद वो बहुत चैलेंजिंग होगा। इवन 1 करोड़ पेजेस भी अगर रीड करने हैं, ध्यान से रीड करने हैं, तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी करने वाले हैं। क्या आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है? सबके पास एक पीस ऑफ पेपर जो ब्लैंक हो, या एक डायरी का एक पेज जिसके ऊपर कुछ आगे पीछे कुछ लिखा हुआ ना हो। तो वी जस्ट वांट वन एक्टिविटी टुडे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बहुत सारी बातें करें और कुछ एक्टिवेट ना करें हम अपने आप को, क्योंकि मैथ्स इज अबाउट, हाँ ठीक है। और वो सेशन हम ये जो एक्टिविटी वाला है, क्योंकि ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो वो एक एक्टिविटी के लिए भी आपको तैयार रहना है। देयर विल बी लाइक 3 मिनट्स स्मॉल एक्टिविटी that will help us to know the mathematics and the beauty of mathematics,
which will not only help us to understand ourselves, but it will help us to delve into the deeper duties in our life. तो आज की इस सेशन में हमने कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन जरूर किया है. तो क्या कोई बता सकता है कि क्या की पॉइंट्स आज आपने अभी इस टॉक में समझे? यस, एनी वन ऑफ यू हु कैन रिपीट द की पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1. हाँ जी. साइंस ऑफ ब्यूटी. ब्यूटीफुल आंसर. और साइंस ऑफ मेजरमेंट. साइंस ऑफ प्रेडिक्शन. साइंस ऑफ हार्मनी. साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन. हाँ जी. 987. साइंस ऑफ लाइफ. साइंस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू. साइंस ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट. तो हमने कुछ अच्छे पॉइंट्स, सुपर 8 पॉइंट्स आपसे सुने हैं. और अब हम नेक्स्ट टेक्निकल सेशंस में और डिटेल में जाएंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे क्या ऐसी केस स्टडीज हुई है जिन्होंने अपने मैथमेटिकल प्रोग्रेस के थ्रू एक ऐसे लेवल का प्रोग्रेस किया है जो न केवल रिमार्केबल है बट कि एस्टॉनिशिंग, एक मार्वल है. तो मार्वल्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में भी हम समझेंगे. तो अपनी बात को यहीं रखते हैं और निरंजन जी और प्रभात जी और सभी जो मिसेस झा हैं, अनन्या जी हैं और जो भी लोग आज सुबह से हमें मिले हैं, मैथ्स के प्रोफेसर हैं, आपका नाम हो गया मुक्ता जी हैं, और सभी लोग जो इस प्रोग्राम में युक्त हुए हैं, संयुक्त हुए हैं और जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है. आपका शुभ नाम होगा? पंकज जी, जो सुबह से हमको सबसे पहले रिसीव करने वाले हैं, और इनको देखते हमारा दिल भी पंकज की तरह खिल गया. तो इसी के साथ अपनी बात को यहीं विराम देते हैं. तो ऐसे सेशंस डीयू में आगे भी होते रहे, इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम. Professor Prabhat Mittal is maintaining a dashboard of the lab courses and he would like to share it with you all. Welcome, participants, and I would like to introduce that this is a 6th workshop that we are conducting here as a value addition course, and many more are planned. जी, करंट इस ईयर में हमने 15 वर्कशॉप्स की प्लान किया था, जिसमें 6th वर्कशॉप में आज हम बैठे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि इतने उत्साहवर्धन से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं. साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत सारी वर्कशॉप में यही बात करता रहा कि वैल्यूज ऑफ द वैल्यू एडिशन कोर्सेज कहाँ है. And this is what we are listening to Munir Maharaj ji, that he is trying to connect the actual values to the value addition course Vedic mathematics. And what I perceive that all educators of this value addition course in different colleges should take this to the students. उनको यही बताना है सब्जेक्ट से ज़्यादा. इसके साथ साथ मैं वैल्यू एडिशन कोर्स कमेटी द्वारा जो वैक डैशबोर्ड बनाया गया है, मैं उसको आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ. This is our वैक डैशबोर्ड. तो टोटल 39 कोर्सेज वैल्यू एडिशन कोर्सेज ने अभी तक लॉन्च किए हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लेटेस्ट फिगर है जितने हम लोग ट्रेन कर चुके हैं सभी कोर्सेज में. और वैदिक मैथमेटिक्स में अभी तक 25,515 25,515 आप लोगों की बदौलत से है. लेकिन इसमें साथ साथ ही क्योंकि हमने वैदिक मैथमेटिक्स के 4 कोर्सेज शुरू किए थे 4 लेवल्स पर, 1, 2, 3, 4. तो वैदिक मैथमेटिक्स 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं जो हम 2 तक नहीं ले जा पाते हैं. बहुत बार वो दूसरे कोर्सेज को पढ़ना चाहता है क्योंकि यहाँ एक सीक्वेंस है कि 2 वही लेगा 1 जिसने पढ़ा हुआ है. तो कुछ सोच करके उन सिलेबस को आइडेंटिफाई किया गया था. सिर्फ वैल्यू एडिशन कोर्सेज के इसी कोर्स में वैदिक मैथमेटिक्स 2 में जब जाएगा वो तो 1 पढ़ा होना चाहिए. ठीक, तो ये आप
कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेना चाहे यूनिवर्सिटी, this has already been launched and the WAC committee, WAC course coordinators, list of WAC student data. अगर आप डिटेल में WAC student data देखना चाहते हैं तो यहाँ पर WAC student data किस सेमेस्टर में कितना हमारे पास है, so this you can just say. So this is all contribution from the value addition course committee. Now I would request again back to Shivani Jha to say both of things. Please, thank you. Dr. Ananya. Today it is the sixth value addition workshop in the series of capacity building workshops that has already been informed, and it is indeed a grace-filled moment that we are blessed by the presence of two divinely favored, profound Jain ascetics, Dr. Abhijit Kumar and Sri Jagreet Kumar, on the workshop of Vedic mathematics. And as both of them have told today, that Vedic mathematics is not about memorizing rules, it is about seeing the synchrony, the harmony. And because I come from the Department of Philosophy, so of course, as we all understand, the word Vedic is from the Sanskrit root Ved, which means to know. So Vedic mathematics is the art of knowing numbers in harmony. And such a workshop, which has been on Vedic mathematics, reinstates the fact that, after all, the real mathematical zero was discovered in India. And DU, by reintroducing a paper in alignment with it, I think we are in alignment with the rich Bharatiya Parampara, and a big round of applause for this. I must mention that the force behind all these workshops is largely because for Professor Niranjan Kumar sir, who is the chairman of Value Addition Course Committee and the Dean Planning, University of Delhi. I think because for his unwavering support in anything and everything, we have reached this far, and I'm sure we would be going ahead, we'll be marching ahead. My appreciation and thanks also to Professor Shobhna Sinha, Coordinator Value Addition Committee, and Professor Rajni Sahani, Coordinator Workshop Committee. I would be failing in my duty if I do not mention Professor Prabhat Mittal sir, the convener of Value Addition Committee, who is the go-to-go man whenever we have any issues, technical, logistical, or otherwise. And definitely my deepest thanks to my colleague, Dr. Jha, Shivani Jha from IP College, and the excellent back-end team there with Anil and Nandi and everyone. Thank you so much. And I think we are breaking for tea now. And after that, we continue with our technical sessions. Thank you. Dashboard was prepared by Ilambhat Kawat Professor Prabhat. And it's the first interactive dashboard of the university. इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको